Okay, am I audible, students? हाँ सरोज बोलो. Yes, good afternoon, all of you. I'm starting. Wait a little bit. Let the students join and ask your friends to join because I have to discuss one important issue with you apart from the class regarding the class topic. Wait a minute. I am. Okay. I think I'm audible to all of you and clearly visible to me. Okay, I want to share one thing that today uh, I have told someone who have text me in WhatsApp that when the class will be take place. So I have told him or her, don't know, that we are in a meeting. Okay, so in that meeting, please listen carefully. In that meeting, with the third semester students, because third semester students are not joining their classes properly, so we have arranged one induction with the students with in the presence of our principal sir. So one thing principal sir has cleared in the meeting, that if you are not doing your classes regularly, seriously, you will not be able to sit for the internal examination as well as in the term examination. Because before issuing the admit cards, the college authority issue a undertaking to the university authority that all the students are present, all the students are uh, at par as far as the attendance is concerned. But
From this year, this will not be entertained, because previously students have uh, s- told us that they have came, but no students, they have come, and teachers are there was no teacher, and teachers didn't take classes properly or on a regular basis. But now we are on upgrade platform where everything is recording. Okay, every data is going to the authority, to the principal sir, and principal sir can check which student has attended, which student hasn't attended, how many times you have spent on this platform. Everything is recorded, and you cannot blame us. Okay, you cannot. If we are not taking, then we also be responsible for that. We cannot discharge our responsibility by saying that we have taken the class. Sorry, this may happen, this may not happen. But because it is, I'm saying this thing, this is also recorded. This is also recorded, and you people will get it from your. I think you won't get the recording, but the authority has the right to download the recording. So I am telling you all that almost, I think 870 around students in your fifth semester, but only 15-14 students are joining. So please tell your friends very clearly, very precisely, that if they are not attending the classes, whatever may be the reason, but they won't be in a position to appear in those exams. Okay, and no excuses will be entertained. Okay, so please be serious and be attentive in the classes. You will get much knowledge from us. Okay, and it is also helpful for us. So now you decide which one you should choose, classes or the career in your examination or anything else. Okay, so that's the main thing what I have need to say with you or share with you. Now I am entering into your main discussion, that amalgamation. Okay, we are discussing regard about the amalgamation in the last few classes, where we have seen that when two or more companies are getting merged or getting absorbed in one another, that situation is called as the अमलगमेशन. उसको अमलगमेशन कहा जाता है. और ये अमलगमेशन दो तरीके का हो सकता है. एक तो हो सकता है इन द नेचर ऑफ मर्जर, और एक हो सकता है इन द नेचर ऑफ परचेस. ओके, इन द नेचर ऑफ मर्जर में हम लोग देखे थे कि ये नॉट अ होस्टाइल मर्जर, मतलब कि ये आपसी सूझबूझ, आपसी तालमेल के ऊपर ये काम कायम है. ठीक है, हम चाहते हैं कि किसी दूसरे के साथ हम हाथ बटाएंगे, उसके साथ हाथ मिला के काम करेंगे. तो ये हम दोनों के आपस का मामला है. ये हम दोनों डिसाइड करेंगे कि कैसे इसको हमें आगे लेके जाना है. जैसे शादी में भी होता है ना, एक लड़का लड़की में जब शादी होता है तो क्या दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये होता है. तो यहाँ पे भी दो कंपनी जैसे आपस में जुड़ रहे, तो उन दोनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर उन दोनों के शेयर होल्डर्स लोगों के आपसी तालमेल के ऊपर ही ये जाता है. और परचेज में वो क्या हो रहा है कि हम किसी को जबरदस्ती खरीद रहे हैं. तो इसलिए हम लोग वहां पे देखे थे कि इन नेचर ऑफ मार्जर में जो एसेट लायबिलिटी है वो ट्रांसफर ही कंपनी लेने के लिए मजबूर है. लेकिन इन केस ऑफ इन नेचर, इन परचेज, इन द नेचर ऑफ परचेज, द transfer company is not responsible for taking all these things. That's why I've told you that those five provisions, those five conditions, if any condition fails, then it will be a hostile, will be an amalgamation in the nature of merger. Okay, so we are doing one sum. In the last class, I have shared the sums with you, and I think I have done the books of transferee company, sorry, transferor company X limited and Y limited. Z limited remains, and the balance sheet of the Z limited remains. So that we will discuss today, and I will give you, this should be an interactive session. I will give you one assignment on that similar type of sum, exactly similar type of sum, and you should, these 13 people should, but others also have
the responsibility to submit that assignment to me within 2 days. Okay, within 2 days you have to submit. I will give you the sum and will give you the link where you have to submit. Then you have to submit it. Okay, so now I'm the continuing the Transferee company's books. Okay, I have in the last class I have shown you the journal entries in the books of X Limited and Y Limited. That was the Transferee company. That were those companies were the transferer company. Sorry. So now today we will discuss about the transferee company. Is it visible to all of you? Is it visible? My screen is visible to all of you? Please confirm me, then I will continue it. Okay. So let's do the sum. So in the last class, we have done the transferee company. Okay. So today we will sorry, I'm again wrongly said that transferer company. So today we will discuss the transferee company. So we in the books of Z Limited. This is our transferee company. This is our transferee company in the books of Z Limited and journal जैसे हम उस दिन किए थे journal folio. Okay, now we will enter the details. Okay, so here I am writing what was the transaction that X Limited and Y Limited is amalgamated or merged and a new company is formed, that is the Z Limited. So हम लोग X Limited और Y Limited जब किए थे तो वहां पे हम लोग देखे थे कि X Limited और Y Limited का जो भी एसेट्स लायबिलिटीज थे उनको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिए थे और जैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट पे ट्रांसफर किए थे तो उसके साथ उस हिसाब से एक बैलेंस क्रिएट हुआ था, मतलब कि एक डिफरेंस क्रिएट हुआ था और वो डिफरेंस को हम लोग बोल रहे थे कि रियलाइजेशन लॉस या फिर रियलाइजेशन प्रॉफिट। और उस डिफरेंस कहां से आया था? डिफरेंस आया था परचेस कंसिडरेशन के साथ, मतलब कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज, मतलब एसेट्स को ले लिए और लायबिलिटीज को पे कर दिए, मतलब ये दोनों को, मतलब कि कुछ मिल रहा है कुछ देना पड़ रहा है, तो इन दोनों का कंबाइन करके जितना तुम्हारे पास नेट बेनिफिट जा रहा है और परचेस कंसिडरेशन तुम्हें जितना प्राप्त हो रहा है, उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग उस दिन देखे थे। तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि एक कंपनी, शायद एक्स कंपनी के लिए, सॉरी वन मिनट, हाँ, तो एक्स कम, थोड़ा इसको बड़ा कर देते तुम लोग को देखने में फायदा। हाँ, तो एक्स कंपनी के लिए हम लोग देखे थे कि वहां पे प्रॉफिट हुआ था, लेकिन वाई कंपनी के लिए हम लोग देखे थे कि प्रॉफिट भी नहीं हुआ था और लॉसेस भी नहीं हुआ था। और वो प्रॉफिट लॉस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे? सन्डी शेयर होल्डर्स फंड पे, और वहां से हम लोग फाइनली जब एक कंपनी मतलब कि ट्रांसफरी कंपनी जब वो पैसा मतलब कि शेयर में जैसे दे रहा है तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। अच्छा खुशबू, तुमने उस दिन बोले थे कि मुझे वो लिंक देने के लिए, तुम मुझे मेरे व्हाट्सएप पे एक हाई भेज देना, हम उस लिंक तुम्हें शेयर कर देंगे। ठीक है। तो क्या बोल रहे थे कि ये अब जैसे उन लोगों के पैसा आ चुका है मतलब कि शेयर में हो या फिर किसी और तरीके से हो, तो उसको हम शेयर होल्डर को दे देते हैं और अगर कुछ बचा हुआ रहता है तो उसको हम कैश में पेमेंट करेंगे। ठीक है। तो दिस वाज द सिचुएशन।
अब हम लोग जाएंगे जेड लिमिटेड के खाते में। तो जेड लिमिटेड के खाते में क्या लोग हम लोग करेंगे, हम लोग लास्ट मंडे को पढ़े थे, लास्ट मंडे को क्या पढ़े थे कि अगर जेड लिमिटेड में हम लोग करने जा रहे हैं तो वहां पे होगा बिजनेस परचेज, मतलब कि बिजनेस आ रहा है तो इसलिए बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट हम लोग के डेबिट हो रहा है क्योंकि बिजनेस आ रहा है मेरे पास, तो इसलिए बिजनेस परचेज अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट पे हम क्रेडिट किसको कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं लिक्विडेटर्स। हम लोग को पता है कि एक कंपनी जब क्रिएट होता है, एक कंपनी जब फॉर्म होता है तो उसको हम लोग को पता है कि वो एक लॉ के तहत, एक लॉ के तहत उसको बनाया जाता है। एट द सेम टाइम जो कंपनी अगर लिक्विडेशन पे जा रहा है, मतलब कि कंपनी उठ जा रहा है, तब भी हमको ये, मतलब कि कंपनी को ओपन भी करना है लॉ के तहत, बंद भी करना है लॉ के तहत। और लॉ बता रहा है कि कंपनी को जब बंद करना है तो एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो लिक्विडेटर तुम्हारा जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको पूरे करेंगे, एट द सेम टाइम उसका वैल्यूएशन वगैरह भी कर देगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे लिक्विडेटर, लिक्विडेटर liquidator of Y Limited. Okay, liquidator of Y Limited account. So there are two liquidators. One is the liquidator of X and one is the liquidator of Y. So how much? यहाँ पे वो परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट हम लोग डालेंगे। परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट कितना था याद करो, देखो परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट था 1,20,000 फॉर 1,20,000 for X Limited, and for Y Limited it was 60,000. So total 1,80,000. Right? Okay. Now the narration should be attached. Being the amount payable being the amount payable being the amount payable to the liquidators, payable to the liquidators of X Limited and Y Limited. Okay, as per agreement dated. ऐसे हम लोग वहां पे लिखते थे ना, जब वो एसेट का इक्विटी शेयर में ट्रांसफर कर देते तो वहां पे लिखते थे हम लोग बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डेटेड। यहीं पे भी हम लिखेंगे बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, टू लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड, एंड हियर द पर एग्रीमेंट डेटेड। एज पर एग्रीमेंट डेटेड का मतलब जिस दिन हम लोग ये एग्रीमेंट में एंटर किए। कौन सा एग्रीमेंट? ये जो एमलगमेशन का एग्रीमेंट था। इसके बाद हम लोग का एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? नेक्स्ट एंट्री हम लोगों का होगा कि जितना भी एसेट लायबिलिटीज उन्हें मिला है इसको हम, ये जो बिजनेस परचेज है उसके साथ हम इसको एडजस्ट करेंगे। कैसे? देखो एक एक करके हम इसको लिखते हैं। जो भी एसेट्स मिला है, मतलब कि एक्स के पास से भी और वाई के पास से, ठीक है, कहाँ पे लिख रहे हैं हम? लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, एक्स के पास लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिए। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। उसके बाद आ रहा है इन्वेंटरीज, जो भी था उन लोगों के पास इन्वेंटरीज अकाउंट डेबिट। उसके बाद आ जा रहा है सन्ड्री डेटर्स।
देन कैश। यहाँ पे देखो ये जो हम लिखे इसमें जो लैंड एंड बिल्डिंग एक्स के पास था, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी एक्स के पास भी था और वाई के पास भी था। तो इन दोनों को हमें जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को मुझे टोटल बना के यहाँ पे डालना पड़ेगा कि टोटल एसेट्स या फिर टोटल लायबिलिटीज कितना गया है। ठीक है, पहले दिन का अगर हम देखेंगे तो पहले दिन में हम लोग को दिख रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी एक्स के पास था। अच्छा, ये अलग अलग से कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, एक काम करते अलग अलग से कर लेते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ ना करके, ठीक है, दोनों हम लोग एक साथ नहीं कर रहे, एक एक करके बना रहे हैं। ठीक है, पहले एक्स लिमिटेड का बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग वाई लिमिटेड का बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं एक एक करके बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि टू, वो क्या कुछ था, 6% डिबेंचर्स था, 6% डिबेंचर्स था हम लोगों का। एक साथ नहीं करते, छोड़ो, एक साथ करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। टू डिबेंचर्स अकाउंट, देन टू ट्रेड क्रेडिटर्स, हम लोग का ट्रेड क्रेडिटर्स था। ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट, उसके बाद था हम लोगों का एम्प्लॉयज पीएफ, एम्प्लॉयज पीएफ था। नेक्स्ट आ जा रहा है हम लोगों का उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं जनरल रिजर्व अकाउंट, के बाद आ जा रहा है पीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम अकाउंट नहीं लिख सकते क्योंकि स्टेटमेंट लिखे हैं। उसके बाद था डिविडेंड इक्वलाइजेशन, उसके बाद था फाइनली हम लोग लिखेंगे टू बिजनेस परचेस, टू लिखेंगे बिजनेस परचेस अकाउंट। ठीक है, तो कैसे लिख रहे हैं देखो, एसेट्स कितना, लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, देखो लैंड एंड बिल्डिंग था हम लोगों का 30,000। ठीक है, यहाँ पे लिखते 30,000। नीचे आए 1,10,000 था हम लोगों के वो क्या बोलते हैं इसको, बोलो, प्लांट एंड मशीनरी का। उसके बाद इन्वेंट्रीज था 16,000 का, हम लोग पिछले दिन किए थे एक्स वाई के अकाउंट पे, अभी हमें जेड के अकाउंट पे दिखा रहा है। सन्डी डेटर्स था हम लोग का 14,000। अच्छा, कैश था 3,000। अच्छा, कैश डेबिट होगा ये, ठीक है। अच्छा, डिवेंचर में जाते हैं, डिवेंचर में जाके लिख रहे हैं डिवेंचर था 20,000 का। अच्छा, ट्रेड क्रेडिटर्स था 10,000 का। जो जो था हम सिर्फ उसको दिखाते जा रहे। 3,000 था हम लोग का पीएफ, सिर्फ एंट्री कर रहे हैं। अच्छा, जनरल रिजर्व बाद में दिखा रहे हैं, पहले पीएल देख लो। पीएल है हमारा 12,000 का, सॉरी 2,000 का, 2,000 का। डिविडेंड इक्वलाइजेशन हम लोग का 4,000। बिजनेस परचेस में वो 1,20,000, मतलब कि जो एक्स लिमिटेड का था। ठीक है, हम एक एक करके कर रहे हैं, पहले एक्स लिमिटेड का दिखा रहे हैं, इसलिए हम एक्स लिमिटेड का पूरा डेटा ले लिए। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, इसका टोटल बना लेते हैं। टोटल क्या आ रहा है देखते हैं। टोटल बोलो कितना आ रहा है। देखो टोटल आ रहा है 30,000, 30,000 प्लस 1,10,000, उसके बाद 16 भी 14, मतलब कि 30 से और 30,000 और 3,000। तो टोटल आ चुका है हम लोग के डेबिट साइड पे 1,73,000। ठीक है। बदले में कितना जा रहा है, देखो 20,000 जा रहा है डिवेंचर्स, 10,000 चला गया हम लोग के क्रेडिटर्स, 3,000 चला गया वो एम्प्लॉइज, 2,000 गया पीएल में, 3,000 4,000 गया हम लोग का, बोलो क्या था उसका, डिविजन इक्वलाइजेशन। तो 1,34,000। ठीक है, 1,34,000 आ रहा है हम लोगों का नेट बैलेंस। मतलब कि एसेट कितना लिया है, एक मिनट, हाँ, एसेट कितना लिया है और उसमें लायबिलिटीज कितना पेमेंट हुआ है। तो उसके अगर हम दोनों को देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि 1,73,000 का जा रहा है एसेट्स, और उसके बदले में हम लोग का, एक मिनट रुको वो देख लेते हैं, उस दिन का चेक कर लेते हैं। उस दिन का वो क्रेडिट साइड में टोटल था, हाँ, क्रेडिट साइड में तुम्हारा था 33,000 का लायबिलिटीज, और शेयर होल्डर फंड्स जो था, वो शेयर होल्डर फंड्स था 1,40,000। तो 1,40,000 और 1,00,000 तो 1,73,000 हो चुका है। तो दोनों साइड पे अगर हम जोड़ेंगे तो इक्विटी शेयर का तो हम निकाल देंगे, 1,00,000 नहीं लेंगे। लेकिन हम जैसे ही उसका टोटल मारेंगे ना, तो दिख रहा है कि हम लोगों का, ये जाओ इधर जाओ, दिखा रहा है, देखो ये जो एसेट साइड का टोटल है ये आ रहा है 1,73,000, और लायबिलिटी साइड में जो भी है इसका टोटल, इसको छोड़ के, ठीक है, ये बिजनेस परचेस को छोड़ के इसका जो ले रहे हैं, इसका माइनस करने के बाद जो पैसा आ रहा है उसको अगर हम यहां से माइनस करेंगे तो एक डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस होगा ये जनरल रिजर्व में। ठीक है, जो डिफरेंस रहेगा वो हम जनरल रिजर्व में सिंपली डाल देंगे। तो कैसे होगा, हम फिर से बता रहे हैं, देखो बच्चे लोग, इसको कैसे करना है। पहले एसेट साइड का पूरा टोटल बना लो। ठीक है, एसेट साइड का पूरा टोटल बना लो। एक मिनट, एसेट साइड का पूरा टोटल पहले बना लो। ठीक है, एसेट साइड का टोटल जैसे ही बना लिए तो यहां से जनरल रिजर्व को छोड़ के, जनरल रिजर्व को छोड़ के बाकी रकम को इसको रेट कर दिए, बाकी जो अमाउंट फिगर से इसको माइनस कर दो। तो इसको माइनस करने के बाद जो पोर्शन तुम्हारा डिफरेंस आएंगे, उस डिफरेंस को सिर्फ जनरल रिजर्व के जगह पे डाल दो। सिंपली जनरल रिजर्व के जगह पे वो चीज को डाल दो। लेकिन द वन एंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तुम जनरल रिजर्व को नॉर्मली देखने जाओगे अकाउंट पे, तो देखोगे कि वहां पे 14,000 नहीं 34,000 था। ठीक है, 14,000 नहीं 34,000 का जनरल रिजर्व था। ठीक, अगर तुम लोग देखोगे तो मिल जाएगा कि जहां पे वो जनरल रिजर्व 34,000 था, लेकिन अभी वो आके रुक चुका है 14,000 में। तो ये जो 14,000 कहां से आया, तो 20,000 कहाँ गया। 20,000 एक्चुअली अगर हम फिर से देखेंगे तो 20,000 और कुछ भी नहीं, वो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस है। ठीक है, इसीलिए हम नोट देंगे आखिर में जाके कि इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को जो लॉस ट्रांसफर हम लोग कर रहे थे, कि कैपिटल जितना मिल रहा है और कैपिटल जितना हम लोग के पास था, उन दोनों का जो डिफरेंस था उसको हम लोग जनरल रिजर्व के तहत एडजस्ट कर देंगे। तो जाके इनके पास, नहीं स्क्रीन तो हम दिखा नहीं रहे, अभी दिख रहा है स्क्रीन, अभी स्क्रीन दिख रहा है, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एसेट से टोटल अदर देन जनरल रिजर्व को माइनस करेंगे, तो जाके हम दिखेंगे जो भी, ठीक है, जनरल रिजर्व को छोड़ के सबको माइनस कर दो, जो पोर्शन तुम्हारे यहाँ पे रह जाएगा वो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर लॉस है
हो सकता है ये 14,000 की जगह पे 34,000 ही हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, तो लॉस नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं, सिंपल था। जो हम अभी देखेंगे वाई लिमिटेड के लिए, क्योंकि वाई लिमिटेड के टाइम पे कुछ लॉस नहीं हुआ था। ठीक है, तो अभी हम इसको ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, चलो अभी इसका नरेशन भी बना लेते हैं। बीइंग बीइंग द एसेट्स, थोड़ा बड़ा नरेशन है। बीइंग द एसेट्स, liabilities, reserves, statement of PL, statement of profit and loss, statement of profit and loss, account, profit and profit and loss, taken over and the difference, and I'm writing this difference between amount, difference between amount recorded and amount recorded as shareholders, as share capital issued and share capital of X Limited adjusted against ठीक है। अब इसको कैसे लिए, देखो, अगर तुम पिछले दिन के साम्स पे जाओगे, हम मेरा पूरा स्क्रीन शेयर कर देते हैं, 1 मिनट। अभी देखो, लास्ट डे पे हम लोग क्या किए थे, अभी दिख रहा है ना पूरा स्क्रीन, तो यहाँ पे देखो शेयर होल्डर का फंड कितना था, 1,40,000, और उन्होंने 1,20,000 का कंपेंसेशन दिया था, मतलब कि परचेस कंसिडरेशन दिया हुआ था। तो ये डिफरेंस 20,000, दिस 20,000 is adjusted against the reserve account. Okay, or you can say the I am doing the Y limited part. The same thing will be happen for the Y limited, just copy and paste, but here some modification is required. Then sundry debtors was 9,000 and the cash was 1,000. And debentures was not there, only trade debtors are there, trade creditors are there. So that is why trade creditors, and that trade creditors I think was on of 8,000. 8,000. And finally, nothing was there. Business, it doesn't require, because here the same thing, because here see 50 plus 58, how much, 58, sorry, 50 plus 8, 58 plus 1, 59 and 9, so 68,000. And from 68,000, if we minus the, I think one and if we minus the 8,000 of trade creditors, it remains 60,000, and that 60,000 is the purchase consideration. So that is why you need not to
एडजस्ट एनीथिंग। सो लायबिलिटीज रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, assets and liabilities taken over, assets and liabilities taken over as taken over, बस ये लिखने से ही इसका हो जाएगा, assets liabilities है टेकन ओवर, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, have taken over, taken over. Next, what will be the our entry? Next entry will be the liquidators of X Limited and liquidators of Y Limited to इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी उन लोगों को इक्विटी शेयर दिया जा रहा है, तो इक्विटी शेयर जैसे हम लोग उनको दे रहे हैं तो उसके लिए इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है। तो हम लोग वहां पे देखे थे, पहले देखे थे, अगर किसी को इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर इशू करने का एंट्री क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट के जगह पे जिसको मिल रहा है उसका नाम को यहाँ पे हम डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल दिए 1,20,000। ठीक है, 1,20,000, और नीचे हम डालेंगे इसी को डाल देंगे प्लस 60,000। ठीक है, और इसके बगल में हम लिखेंगे टू इक्विटी, क्योंकि ये एक्स लिमिटेड का इक्विटी शेयर इशू हुआ, क्योंकि उन्होंने तो इक्विटी शेयर जो अपने नया कंपनी का जो इक्विटी शेयर है वो मार्केट पे ना डाल के वो इन लोगों को ट्रांसफर कर दिया है। तो इसलिए अगर ये नॉर्मल एंट्री होता तो बैंक अकाउंट हम लोग का क्या होता, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आखिर में बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होता। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बैंक में नहीं, लिक्विडेटर्स को जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे कि लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग 18,000 इक्विटी शेयर्स, 18,000 equity shares or equity shares issued to Trans-Hara company as fully paid up for consideration other than cash। ठीक है, ये हो गया हम लोग के नरेशन। Okay, so now we will finally end it. How? Because one thing is remained, that is the debenture part. Okay, now we will adjust the debenture part, क्योंकि वहां पे बोला गया था कि 6% डिवेंचर्स जो होगा वो 6% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड डिवेंचर अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो 6% डिवेंचर्स, अब हम लिखेंगे 6% डिवेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 6% नॉर्मल हो चुका, हो गया। ठीक है, हो गया। पैसा कितना है? 20,000 था, 20,000 ही हो जाएंगे, अमाउंट में कुछ चेंजेस नहीं हो। ठीक है, एडिशन बीइंग
खत्म, debenture holders of X Limited. Okay, complete the sum. Now we will move to the next part, that is the balance sheet. Okay, now we move to the balance sheet of Z लिमिटेड। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हम लोग इसका बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, चलो इसका बैलेंस शीट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ Z लिमिटेड। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ Z लिमिटेड, पर्टिकुलर्स, नोट और अमाउंट। ठीक है, ये 3 अकाउंट होगा, इसलिए हम इसको मर्ज कर लिए, यहाँ पे डाल दिए, और ये वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा कर कि यहाँ पे हमको लिखना है। ठीक है, ये है नोट्स टू अकाउंट, ये हो गया अमाउंट का पीटी। यहाँ पे हम लिखेंगे पहला वाला पोर्शन पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब नीचे एक एक करके बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, रुपीस डाल दो। ठीक है, हो चुका है। चलो अभी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, यू हैव टू मेंटेन द फॉर्मेट। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे, हम जैसे लिख रहे हैं ऐसे लिखना होगा, वन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, इसके नीचे मेन पोर्शन क्या होगा, इसके नीचे होगा ए इक्विटी शेयर या फिर शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल कितना, शेयर कैपिटल 1,80,000 का, क्योंकि हमने 18,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे और एक एक का वैल्यू था 10 टका। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे बी, बी में आ रहा है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है हम लोगों का, 20,000। ठीक है, हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस 20,000 सब दिखाएंगे। उसके बाद टू में आ रहा है शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एक्चुअली ये कुछ है होगा नहीं इसका अमाउंट, लेकिन यू हैव फॉर मेंटेनिंग द फॉर्मेट यू हैव टू गिव। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन 3 was non-current liabilities. Non-current liabilities, and below that, what is the non-current liability? One is there, that is long-term
बोरोइंग्स, इसमें भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वही हम लोगों का जो डिवेंचर इशू किए ना 6% डिवेंचर, वो यहाँ पे आ गया, वो हम दिखाएंगे, नीचे दिखाएंगे। अच्छा, उसके बाद फोर नंबर है करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज करेंट लायबिलिटीज है, पहला है ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर्स, अच्छा ट्रेड क्रेडिटर्स नहीं, पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी था। शॉर्ट टर्म बोरोइंग वो भी ना हो तो उन्हें दिखाना हो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी मेंटेन करने के लिए, ये फॉर्मेट को मेंटेन करने के लिए तुम्हें इसको दिखाना, तुम लोगों को ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद होगा ट्रेड क्रेडिटर्स, ये फॉर्मेट के ऊपर भी मार्क्स है, ठीक है। तो शुड बी वेरी केयरफुल, फॉर्मेट के ऊपर भी मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद सी में हम दे देते हैं आधार आधार करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज कुछ था, हाँ 3,000 था, वो पीएफ का एक बैलेंस था। अच्छा, यहाँ पे हम लोग और एक चीज दिखाएंगे, जो शेयर कैपिटल लिखेंगे, ये शेयर कैपिटल के बगल में एक दिखा देंगे, ये नोट्स टू अकाउंट है, नीचे डिस्कस होगा, ठीक है। ये वाला हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है इसका, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2, ये माइनस दिखा रहा है, ठीक है। इसको वहाँ आई दिखा देते हैं, तो आई नीचे का 2, ठीक है। इसमें जाके 3, यहाँ पे जाके 4, ये नोट्स टू अकाउंट है, नीचे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू फॉलो दिस एंटायर थिंग, ओके, यू हैव टू फॉलो दिस एंटायर थिंग, ठीक है। जो वॉइस नहीं आ रहा है, सुनाई दे रहा है? संगीता, am I audible to you? सुनने की कोई जरूरत नहीं, तुम जो दिख रहा है ना कैसे हम कर रहे हैं, उसको देख जाओ, ठीक है, उसको देखते जाओ बराबर से। यहां से सुनने की कुछ बात नहीं है, यू जस्ट फॉलो व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। तो यहां तक बन चुका है, तो इसका टोटल हम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे इसका टोटल हम इसको बना देते हैं, यहाँ पे सम, इसको टोटल बना देते हैं। टोटल कितना हो गया हम लोगों का, ये देखो टोटल आ चुका है हम लोग का 2,41,000, ठीक है। 2,41,000 आ चुके हैं, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे टोटल। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, यहाँ पे फिर से तुम्हारा वो मैम का क्लास स्टार्ट होगा। यहाँ पे आई था एक, यहाँ पे नीचे होगा हम लोगों का नेक्स्ट एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट होगा हम लोगों का एसेट्स। एसेट्स में क्या कुछ होगा, एसेट्स में फिर से पहले होगा नॉन करेंट, ओके, पहले होगा नॉन नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में पहले होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पहले होगा प्रॉपर्टी, जो फॉर्मेट हम दिखा रहे हैं इसको ही फॉलो करना होगा, ठीक है। इसके बदले दूसरा कोई फॉर्मेट तुम नहीं फॉलो कर सकते। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके नीचे होगा फिर से टैंजिबल एसेट्स, ओके, टैंजिबल एसेट्स,
है। तो आखिर में हम लोग किसका वैल्यू डालेंगे? सिर्फ टैंजिबल एसेट्स का ही वैल्यू हम लिखेंगे। यहाँ पे टैंजिबल एसेट्स का वैल्यू होगा हम लोगों का 1,80,000। वो कहां से आया वो हम दिखाएंगे। उसको हम डाल देते 6 प्लान नोट्स टू अकाउंट। अब फिर से जाएंगे हम लोग कारेंट अकाउंट में, कारेंट एसेट्स पे। इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं कारेंट एसेट्स। कारेंट एसेट्स, ठीक है। कारेंट एसेट्स में क्या कुछ है? कारेंट एसेट्स में पहला है कारेंट इन्वेस्टमेंट। पहला है कारेंट इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद है इन्वेंटरीज। उसके बाद है इन्वेंट्रीज। उसके बाद है इन्वेंटरीज। उसके बाद सी है ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, एक एक करके हम दिखा रहे हैं। अब बी, बी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। और लास्ट में होगा आधार करेंट एसेट्स। ठीक है, एक एक करके वैल्यू डाल देते। देखो करेंट इन्वेस्टमेंट कुछ था नहीं, ठीक है, करेंट इन्वेस्टमेंट कुछ था नहीं, इसके लिए जीरो बैठा दिए। इन्वेंट्रीज था हम लोग के 24,000 दोनों कंपनी का मिला के। ट्रेड था 23,000। उसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट था 4,000। और आधार करेंट एसेट भी जीरो ही था। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे भी हम लोग इसको डाल देंगे 7। उसके बाद नीचे हम डाल देंगे 8। इसको डाल देंगे हम 9। ये इसको क्यों डाल रहे हैं? ये इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो दोनों कंपनी का मिला के जो आया है इसको हम यहाँ पे अलग से नीचे दिखाएंगे। देखो दोनों का आ चुका है 2,41,000। अच्छा यहाँ पे सॉरी, ये 1,90,000 था। ऑनलाइन बिलिंग का 30,000, 50,000, 1,00,000, एक 80,000। और उससे प्लांट एंड मशीनरी था 1,10,000। तो टोटल आ चुका है हम लोगों को क्या? 2,41,000। तो ये टोटल हम लोग के आ चुका है। अब जैसे ही हम लोग के पास ये टोटल आ चुका है, हमें नीचे नोट्स टू अकाउंट्स को हम लोग दिखाना पड़ेगा एज वेरी वेरी प्रिसाइज मैनर। ठीक है, कितना टोटल जा रहा है इसको यहाँ पे दिखाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि नोट्स टू अकाउंट्स को कैसे लिखना है, और उसके साथ इसको हम खत्म करेंगे। लेकिन आज हम एक इस तरीके का ही सम्स तुम लोगों को देंगे। उस सम्स को करके 2 दिन के अंदर, मतलब कि जब देंगे उस टाइम से 2 दिन के अंदर तुम्हें वो मुझे सबमिट करना है। ठीक है, विदाउट बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट तुमने अभी कवर नहीं किए हो। तो इसके लिए दोनों ट्रांसफर कंपनी का ले जर्नल्स और ट्रांसफर की कंपनी का जर्नल ये करके तुम्हें देना है। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज टेल मी। Do you have any queries? Any questions you can ask me? And if not, then I'm ending here. And always welcome to all of you that you can ask me any question through WhatsApp, or you can call me as well. Okay. So I think you do not have any queries. So I'm ending here, students. And